कल तक हमने रियलाइजेशन ऑफ एलसी नेटवर्क देखा था. And what we did was actually saw if an FS follows property of LC network properties एक property of LC network. Okay. In fact, FS was a positive real as well and follows property of LC network, then we could realize it as Foster 1, Foster 2, Carver 1 and Carver 2. ठीक है. We have done this. 2 examples क्लास में किए थे, एक एग्जाम्पल एज होमवर्क दिया गया है जो आपको कल सुबह 6:30 बजे तक सबमिट करना होगा. Anyways, so if you will practice, you will understand it in a better way. Otherwise, we have already done it in our class. Today, we will see how we can realize a network using RC and RL arrangements. यानी केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंसेस अलाउड है, केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंसेस अलाउड है. एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि इन RC और RL की प्रॉपर्टीज क्या होंगी. पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2, वी नीड टू फाइंड आउट अगर इनकी प्रॉपर्टीज हमें पता है तो हाउ वी कैन रियलाइज इट इन फॉस्टर एंड कार्वर फॉर्म्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक नेटवर्क आपको दिया है सेइंग वी आर टॉकिंग अबाउट RC नेटवर्क विद अ पेयर ऑफ टर्मिनल. तो मान लीजिए दिस इज अ पेयर ऑफ टर्मिनल एंड इसके अक्रॉस एक नेटवर्क N आपको दिया है. दिस इज अ नेटवर्क N and it is said that there are many capacitances, inductance and resistances inside, no inductance. How they are connected, we are not worried. Okay, but it is said that there are many resistances and capacitances inside this. So there are many R's and many C's. ये S डोमेन वाला नहीं है, बताने के लिए कि this is plural. There are many and many capacitances. Fine. Even if you had one, मान लीजिए केवल इतना ही होता हमारे पास, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस. फॉर एनी सच कॉम्बिनेशन, यू नो कि अगर आप इंपीडेंस रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, इंपीडेंस रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं फॉर RC नेटवर्क, देन इट विल बी R की जगह R लिखते हैं आप और C की जगह लिखते हैं 1/CS. और मान लीजिए ये पहला कॉम्बिनेशन है, तो हो गया हमारे पास R1 + 1/CS. and there will be many such combinations. ऐसे ही combinations होंगे हमारे. So if you have only RC network, you will have combinations like this. Whereas when we were having LC, so our combination was something like we can have LS plus 1/CS if we are talking in terms of impedances. Here also we are talking in terms of impedances, but I have R plus 1/CS. ठीक है. तो एक कोएफिशिएंट में S नहीं है और एक कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में S है. Now what we can do is, in this equation, you can actually take root S in denominator common. So I can write that my ZRC is equals to 1/root of S R1 root S. देखिए फिर मल्टीप्लाई होने के बाद रूट एस से रूट एस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/C1 रूट एस. अब ये रूट एस से रूट एस मल्टीप्लाई होके एस बन जाएगा. तो वी हैव गॉट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फंक्शंस या नेटवर्क फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ एस, आई हैव replaced it in root s. Now
I'm saying that my ZRC is actually is equals to 1 upon root S R root S plus 1 upon C root S. And when this was a function of S. Now you replace root S equals to P. मान लेते हैं कि कोई root S जो है वो P के equal है. तो you can have your ZRC represented as a function of P becomes 1 upon P RP plus 1 upon CP. 1 upon P RP plus 1 upon CP. In a way, अगर मान लीजिए मैं S को L से रिप्रेजेंट करता, ये इस केस के लिए नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर मैं S को L से रिप्रेजेंट करता, तो जो ZLC टाइप का फंक्शन होता है उसमें होता है हमारे पास LS प्लस 1 अपॉन CS टाइप के टर्म्स. ठीक है, अगर ZLC टाइप के फंक्शन. अगर मैं S को P से रिप्रेजेंट करता तो मेरे पास होते LP प्लस 1 अपॉन CP टाइप के टर्म. यानी एक ऐसा टर्म जिसमें न्यूमरेटर में P से मल्टीप्लाइड है, एक में डिनोमिनेटर में P से मल्टीप्लाइड है. और सेम ऐसा ही यहां पर भी हुआ है. द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ हैविंग L आई एम हैविंग R here. So in a way I can say that actually some ZRC of P is equals to 1 upon P times some ZLC of P. अब देखिए ये LC फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा इन P डोमेन. आप करके देख लीजिए. इट विल बी समथिंग लाइक RCP square plus 1 upon CP odd by even की फॉर्म होगी. You can find all properties of LC it will satisfy. Okay. So if you have LC function, you first change it in P domain. P domain में change करने के बाद you divide it by 1P and then you will get an RC equivalent of that. For an example, you can take like as an example, if you are given an LC function, आप उसे RC में चेंज कर सकते हैं by doing this process. देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक ZLC दिया था in S domain is equals to S square plus 1, S square plus 9, S square plus 4, 0, 1, 4 और 9 से ज्यादा होना चाहिए, S square plus 16. ये एक LC फंक्शन दिया है. Now very first thing is, सबसे पहले ZLC S की जगह इसे ZLC P में चेंज कीजिए. तो just replace S by P. You will get P square plus 1 plus P square plus 9. F की जगह P square plus 4 and P square plus 16. Where you know that actually अगर देखिए, अगर रूट S अगर P की इक्वल है तो S जो है वो P square की इक्वल होगा. Where you can write that your P square equals to S. You can simply replace wherever you got P square, you can replace it with S. अभी ये ZLCP बना है. ठीक है, ये ZLCP बना है. अगर उसे आपको ZRCP बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसे एक P से डिवाइड. तो if you want to change this into some RC function, you can just write it as full ZLC in P domain and divide it by 1 upon P. Okay, so if you will do this, what you will get is this. ये पूरा P square plus 1 रहेगा, ये हो जाएगा P square plus 9, ये हो जाएगा आपका P डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था, एक P से और मल्टीप्लाई, इट विल बिकम P square. ये हो जाएगा P square plus 4 और ये P square plus 16. और आप जानते हैं P square equals to S तो चल ही रहा है. So if you will put P square is equals to S inside this, P square की जगह S रखिए, it will become simply S plus 1, S plus 9 upon S plus 4 and S plus 16. This is what you will get as an RC function for the given LC.
अगर आपको उससे आरसी बनाना है तो यू विल हैव टू गेट इट इन दिस फॉर्म। ओके, नाउ हमने एलसी की फॉर्म देख ली इन इम्पीडेंस कि इम्पीडेंस में तो ये इस तरीके से जाएगा दैट वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1/p एट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू s करके। एक चीज तो ये है। अब मान लीजिए आपको अगर एडमिटेंसेस दिए होते तो एलसी के एडमिटेंसेस तो आप जानते हैं कि जब आप एडमिटेंस लिखेंगे YLC का तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस CS प्लस 1/LS। एडमिटेंस में ऑपोजिट हो जाता है, कैपेसिटेंस विल कम इन न्यूमरेटर एंड इंडक्टेंस विल कम इन डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्म के होंगे हमारे पास। वहीं अगर मैं YRC लूं तो इट विल बी समथिंग लाइक, देखिए Y है ना, तो इट विल बी समथिंग लाइक 1/R प्लस CS, 1/R प्लस CS, क्योंकि मुझे एडमिटेंस चाहिए, R इज इम्पीडेंस तो 1/R कर लिया उसका। अब मान लीजिए 1/R किसी G के इक्वल है, कंडक्टेंस के इक्वल है, तो आई कैन राइट दैट YRC is equals to G plus CS. Now if you take root s common, अब root s common लीजिए, I've taken root s common और फिर root s को p से रिप्लेस करेंगे तो यहां मिलेगा हमें C root s plus G upon root s. Okay, you can also write it as 1/R root s, so which is indeed equals to root s equals to C root s plus 1/R, अगर ऐसे ही लेना है तो root s। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें s root s की जगह p पुट कर दूं, अगर ये s की जगह p पुट होता तो ये ऐसा दिखता PC प्लस 1/PL। मैं यहाँ रूट एस की जगह p पुट कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल गेट इज दिस विल बी p and this is CP plus 1/RP। अब देखिए ये फॉर्म एक P न्यूमरेटर में एक P डिनोमिनेटर में कुछ कुछ ऐसी दिखती है। तो इनफैक्ट एनी YRC you can represent as P times a YLC। तो YRC अगर रिप्रेजेंट करना है आपको तो कोई YLC फंक्शन दिया होगा, उसमें P का मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोवाइडेड आपने उस YLC को भी P डोमेन में कन्वर्ट किया हुआ है। That YLC is also in P domain provided। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए आपको एक YLC दिया है इन S डोमेन, दिया है आपको YLC इन S डोमेन दिया है, इट इज S² प्लस 1 S² प्लस 9 S² प्लस 4 S² प्लस 60। रिमेंबर नाउ दिस इज YLC, दिस इज नॉट ZLC। ठीक है, तो सबसे पहला काम है यू टेक YLC ऑफ P। ये हो जाएगा आपके पास P² प्लस 1 P² प्लस 9 P² प्लस 4 and P² plus 16। Okay, now if you want to convert this YLC into YRC, what you have to do, you just have to multiply it with P। so your YRC of P will become nothing but equals to P times YLC of P। if you do this, देखिए ये P से P cancel हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में एक P है, तो you will be left with YRC of P will become nothing but equals to P² plus 1 P² plus 9 divided by P² plus 4 and P² plus 16। That's it। and P² की वैल्यू S के बराबर है। So you can replace it P² by S, so it will be S plus 1 S plus 9 S plus 4 and S plus 16। जब हम S की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आप रख के देखें, हमारे पास एक बार हमने करके देखा इसे Z के फॉर्म में, RC फंक्शन को Z के फॉर्म में करके देखा कन्वर्ट, और एक बार करके देखा LC के फॉर्म में या YRC के फॉर्म में। व्हेन आई गॉट फ्रॉम ZLC माय ZRC,
तो देखिए हमारे पास गिवन एग्जांपल के लिए क्या फंक्शन आया था, दैट ZRC इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए p स्क्वायर की जगह s रखने से आई गॉट s प्लस 1 s प्लस 9 s प्लस 4 s प्लस 16। ठीक है, ये मेरे पास ZRC के लिए आया था। सिमिलरली अगर मैं YLC से YRC निकालता तो यहाँ है मेरे पास YRC जो कि किसके बराबर है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला, इट वाज, अब p स्क्वायर की जगह s रख देंगे अगर आप, तो इट विल बी जस्ट s प्लस 1 s प्लस 9 s प्लस 4 एंड s प्लस 16। अब इसके पोल्स और जीरोस अगर आप प्लॉट करें तो इफ यू प्लॉट पोल्स एंड जीरोस ऑफ बोथ, मान लीजिए ZRC के पोल्स और जीरोस मैं प्लॉट करता हूँ तो यहां से आप देख के इजीली बता सकते हैं दैट s इक्वल्स टू 0 इज अ पोल। यहां देखिए s इक्वल्स टू 0 इज अ पोल, s equals to 0 is a pole. Now s equals, अब s equals to 0 पोल है तो s equals to 1 0 है, तो ये s equals to 1 हो गया, तो ये एक्चुअली -1 होगा, ये 0 is a pole, -1 is a 0। अब यहाँ s की जगह -9 रखेंगे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पहले देखिए -4 इज अ पोल, तो ये -1 -2 -3 -4 इज अ पोल, -4 इज अ पोल। फिर -9 इज अ पोल, -9 इज अ 0, -9 इज अ 0, और फिर कहीं दूर जाके एक और पोल मिलेगा एट -16। तो देखिए यू आर स्टार्टिंग विद अ पोल, देन 0, देन पोल, देन 0, देन पोल, तो यहाँ पे पोल्स और जीरोस इंटरलेस्ड है, पोल्स और जीरोस इंटरलेस्ड है, यहाँ पे पोल्स और जीरोस इंटरलेस्ड है। एक पोजीशन तो ये हुई, एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा व्हाट यू विल हैव इज दिस, अगर यहाँ पे YRC के पोल्स और जीरोस प्लॉट करें तो देखिए सबसे पहले s इक्वल्स टू -1 इज अ 0, तो एक s इक्वल्स टू -1 0 है, s इक्वल्स टू -4 पोल है, s इक्वल्स टू -9 एक 0 है, और s इक्वल्स टू -16 एक पोल है। अब यहां से ऑब्जर्वेशन ये आई दैट योर ZRC will always start with a pole। देखिए योर ZRC will always start with a pole, ये ZRC था, हमेशा पोल से शुरू होगा, हमेशा पोल से शुरू होगा, और फिर एक 0 आएगा, फिर पोल, फिर 0, फिर पोल, फिर 0, इस तरीके से आएगा क्योंकि इंटरलेस्ड है। वहीं YRC will always start with a 0, ये देखिए 0 से शुरू हुआ। सो वी हैव गॉट ZRC, कोई भी फंक्शन दिया है अगर वो ZRC है तो इट विल स्टार्ट विद अ पोल, एंड अगर वो YRC है देन इट विल स्टार्ट विद अ 0। So YRC will start with a 0, ZRC will start with a pole। ठीक है, एक और चीज भी है, दोनों की ऑब्जर्वेशन देखिए कि इन सबके पोल्स नेगेटिव रियल एक्सिस पर ही है, तो पोल्स और जीरोस आर ऑल ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, ऑल आर सिंपल, तो वी कैन राइट दैट पोल्स एंड जीरोस ऑफ ZRC एंड YRC, RC फंक्शंस या RC नेटवर्क के पोल्स और जीरोस lie on negative real axis including 0, 0 is included, ठीक है, and they are simple, सबकी पावर 1 है, देखिए कोई भी डबल पावर का नहीं आएगा, they are simple and
they are interlaced. ठीक है, तो ZRC की ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। क्या पोल्स और जीरोस केवल नेगेटिव रियल एक्सिस पे होंगे, ना तो ऊपर यानी पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट में, ना नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट में, कोई कॉन्जुगेट में नहीं। रियल पार्ट में तो हो, पॉजिटिव एस प्लेन में तो हो ही नहीं सकते, वरना वो पॉजिटिव रियल नहीं कहलाएगा। तो वी हैव इट ओनली ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, ये कहानी हुई आरसी फंक्शंस की। तो हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली। क्या कि अगर आपको एलसी फंक्शन दिया है और उससे कहा गया है कि नहीं नहीं आप इसको आरसी में रियलाइज कीजिए, या कोई फंक्शन दिया है आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन को आरसी में रियलाइज कीजिए, और आप देखते हैं कि उस फंक्शन का स्ट्रक्चर एक एलसी फंक्शन जैसा है, तो यू फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सम आरसी। ओके, द मोमेंट यू कन्वर्ट इट इनटू आरसी तो उसका पूरा फंक्शनैलिटी ही बदल जाएगी, बिकॉज जो फंक्शन दिया होगा वो वैसा तो नहीं रहेगा अगर आपने उसे इन प्रोसेस से कन्वर्ट कर लिया तो। ओके, तो जो क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में दैट विल बी अ बिट डिफरेंट। उससे पहले अभी हमने केवल आरसी पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं आरएल नेटवर्क्स को। ठीक है, तो हमने आरसी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं आरएल नेटवर्क्स। ठीक है, डन। तो आरसी नेटवर्क्स में ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए व्हाई वी हैव टेकन रूट एस कॉमन एंड देन पुट रूट एस इक्वल्स टू टी, जस्ट टू create an analogy how it is related with the known LC functions, just that। तो अगर ZRC को ZLC से रिलेट करना है तो आपको 1/p करना होगा, और YRC को YLC से रिलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय p करना होगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नोट कर लिया ये? Have you noted it down? Yes, sir. यस सर। Now सर एक चीज पूछनी है पूछिए। सर, इंटरलेस्ड का मतलब क्या होता है सर? ओके, इंटरलेस्ड का मतलब है ये, जैसे मान लीजिए यू आर मूविंग, सो मीनिंग ऑफ इंटरलेस्ड इज if you are finding poles and zeros, okay, and you got one pole, one zero here, इंटरलेस का मतलब है जीरो के बाद एक पोल आएगा और इस पोल के बाद एक जीरो, फिर कोई टर्म, मतलब ऐसा नहीं कि समान दूरी पर होंगे, फिर कहीं एक पोल आएगा फिर कहीं एक जीरो आएगा। लेकिन आप देखिए एंड पॉइंट को छोड़कर जो भी पोल या जीरो है वो किन्हीं दो ऑपोजिट रूट के यानी ऑपोजिट कैरेक्टर के रूट के अंदर होंगे। जैसे अगर मैं इस जीरो की बात करूं, दिस जीरो is in between two poles, one on right side, one on left side. This pole is in between two zeros, one on right side, one on left side. This pole is in between two zeros, one on right side, one on left side. अगर extremities पर आपके poles और zeros नहीं है और बीच में है, तो उनके दोनों साइड ऑपोजिट नेचर का रूट मौजूद होगा। इसका मतलब होता है इंटरलेस्ड। तो जो एलसी फंक्शंस हमने पढ़े थे जहां रूट्स केवल जे ओमेगा एक्सिस पर थी, आप देखेंगे एलसी फंक्शन के रूट्स जे ओमेगा एक्सिस पर होते हैं और वो सब इंटरलेस्ड होते हैं। ठीक है, पिछले एग्जांपल्स जो हमने किए थे एलसी फंक्शंस को रियलाइज करने के, आप उनमें चेक भी कर सकते हैं कि एक पोल दो जीरोस के बीच में होगा और एक जीरो दो पोल्स के बीच में होगा। बात समझ आई? इंटरलेस क्या होते हैं? सर एक्सट्रीम जो पोल्स एंड जीरोस हैं उनका क्या होगा फिर? एक्सट्रीमिटीज को नहीं कंसीडर कर सकते ना। ओके सर। ओके, तो यू विल नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट इट इज फॉर श्योर कि अगर एक्सट्रीमिटी अपने आप में एक जीरो है तो उसके जस्ट नेबरहुड में एक पोल होना चाहिए, और अगर एक्सट्रीमिटी अपने आप में एक पोल है तो उसके जस्ट नेबरहुड में एक जीरो होना चाहिए। दिस इज अ मस्ट, दोनों साइड नहीं कह सकते आप। ओके सर। Okay. Now we'll move on to properties of RL networks. तो RC पढ़ लिया हमने, अब RL networks देखते हैं। So RL networks are of this form.
मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस था एंड यू हैड an inductance like this. So most of the time it will be just R plus LS. केवल इस फॉर्म के होंगे, R plus LS फॉर्म के. ओके, तो my Z, अगर मैं impedance फॉर्म में बात करूं, my ZRL in S domain will be nothing but equals to R plus LS फॉर्म. अब अगर मैं इस में से रूट एस कॉमन ले लूं तो इट विल बी समथिंग लाइक रूट एस एल रूट एस प्लस आर अपॉन रूट एस. ओके, एल रूट एस प्लस आर अपॉन रूट एस. अब ये जो फंक्शन है ये देखिए, इसमें एक में डिनोमिनेटर में एस है, एक में न्यूमरेटर में एस है. अगर मैं इसे पी से रिप्रेजेंट करूं, पुटिंग रूट एस इक्वल्स टू पी, तो जेड आर एल in P domain will become what? P times some P into L plus some R upon P. Okay, it will become something like this. Some P into L plus some R upon P. Oh, this is LC का फॉर्म. और LC में भी आप देखें L न्यूमरेटर में है और ये कोई फंक्शन होगा जो अगर न्यूमरेटर में है तो ये 1 upon R या you can say 1 upon R will be in denominator. So this has some LC representation. So if you multiply RL के लिए, अगर आप चेक करें, RC के लिए नहीं, RL के लिए देख रहे हैं और इम्पीडेंस रिप्रेजेंटेशन में है, तो किसी ZLC को P से मल्टीप्लाई करना होगा इन ऑर्डर टू गेट ZRL. ठीक, किसी ZLC को मल्टीप्लाई करना होगा P से इन ऑर्डर टू गेट ZRL. और वहीं अगर हमारे पास यही रिप्रेजेंटेशन YRL के फॉर्म में होती, YRL के फॉर्म में होती तो क्या करते हैं? तो you can see that if you were having it in form of YRL. तो YRL का मतलब हुआ R की जगह 1 upon R और L की जगह 1 upon LS. So I can write this as 1 upon R equals to G plus 1 upon LS, and I can take root 1 upon root S common. So this will become G root S plus 1 upon L root S. Now if I'll change it with 1 upon P, GP plus 1 upon LP, तो ये कोई YLC की फॉर्म आ गई है ना, जिसमें अपॉन में अगर L आए तो YLC की फॉर्म होगी. दिस इज सम YLC फॉर्म multiplied with 1 upon P. This give me some YRL. ठीक है, this give me some YRL. तो यहाँ उल्टा हो रहा है. If you are in doing RL, तो जब ZRL चाहिए आपको, उसके लिए तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा. So it is something like if you want ZRL, then you have to multiply with P some ZLC. और अगर आपको YRL चाहिए तो you will have to multiply with 1 upon P some YLC. वही अगर पिछला आपको याद हो, if you were wanting for YRC या ZRC, तो if you want ZRC, you will take 1 upon P ZLC, and if you want YRC, it was P times YLC. तो ZRL और YRC देखें, P डॉट ZLC, P डॉट YLC, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है. तो यू कैन राइट दैट ZRL and YRC has same properties. अभी तक एक ही तो प्रॉपर्टी पड़ी थी. क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी? दैट YRC starts with a 0, so ZRL also start with a 0. और इसी तरह आप लिख सकते हैं दैट योर ZRC and YRL has same properties.
ठीक है, तो गिवन इम्पीडेंस, कोई इम्पीडेंस फंक्शन दिया है आपको, आपसे कहा गया है कि उसका आरसी इक्विवेलेंट निकालिए, तो आप उसका ZRC इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, साथ में YRL इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। आप उसका ZRC इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, आप YRL इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। हालांकि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब पढ़ चुके हैं हम, लेकिन फिर भी एक फाइनल नोट्स ले लेते हैं कि कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। ZRC, YRC, ZRL एंड YRL हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है, तो मैं यह लिख रहा हूं कॉमन प्रॉपर्टीज। कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? दैट poles and zeros of every function, every of these will lie on negative real axis and are interlaced. ठीक है, नेगेटिव रियल एक्सिस पे होंगे और ये सभी के लिए इंटरलेस्ड होंगे। दूसरा कॉमन पॉइंट, दैट अप्रोप्रिएट रेसिड्यूज, रेसिड्यूज किसके लिए होते हैं? केवल पोल्स के लिए। आर रियल एंड पॉजिटिव, your residues should be real and positive. Okay, appropriate residues are real and positive. ये तो ही कॉमन प्रॉपर्टीज। फिर आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ YRL एंड ZRC की। So let us try to understand properties of YRL and ZRC. कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं केवल ZRC और YRL के लिए। वो क्या है? दैट ZRC एंड YRL में जो फर्स्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी, that will be a pole. इसे मस्ट कर लीजिए। एंड इट कैन लाई एट s equals to 0। तो नेगेटिव रियल एक्सिस बोला था, पोल जो है ZRC या YRL का s equals to 0 पर आ सकता है। और दूसरी क्या है प्रॉपर्टी? दैट रेसिड्यूज मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। ये तो कॉमन ही है। तो ZRC और YRL में ये चीज कॉमन है कि उनकी पहली क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एक पोल होगी, और ZRL और YRC की कॉमन प्रॉपर्टी है कि इन लोगों की या इन दो की फर्स्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी विल बी अ 0। and it can also lie at s equals to 0। s equals to 0 पे भी हो सकती है ये। ठीक है, रिमेंबर दैट इट इज अ 0। इसका मतलब पहली क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी सबसे छोटा रूट न्यूमरेटर में होगा, ZRC और YRL का सबसे छोटा रूट डिनोमिनेटर में होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेसिड्यूज ऑफ सिंपल functions, you will have residues of YRC upon S. You see, this is important. Residue of not just YRC, but you want YRC upon S and residue of ZRL upon S. We are not concerned with residue of YRC. We are now taking account of residue of YRC upon S and ZRL upon S. इनके रेसिड्यूज अगर आप ले शुड बी रियल एंड पॉजिटिव, नॉट रेसिड्यूज ऑफ YRC बट YRC अपॉन S, नॉट रेसिड्यू ऑफ YRL बट ZRL बट ZRL अपॉन S। दिस शुड बी रियल एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नोट्स ले लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी आवर गाइडलाइंस फॉर नेक्स्ट 2 classes। Okay, this is going to be the guideline for next 2 classes।
now एक छोटा सा एग्जांपल बिफोर जस्ट वाइंडिंग अप दिस क्लास. एक मान लीजिए हमें anyways, I'm running out of pages. Let me arrange a few, then we will reconnect for 5-10 minutes, not more than that. Okay, so I will stop recording over here and